السلام علیکم ناظرین، روشن ٹی وی خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ خبرنامے کا آغاز کرتے ہیں حدیث مبارکہ سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی کا چچا اس کے باپ کی مانند ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔ آغاز کرنے سے پہلے نظر ڈالتے ہیں آج کے اہم سرخیوں پر۔ ہریت حرم کے تحت لگائے گئے پودوں کی حفاظت و نگہداشت کی ذمہ داری گرام پنچایت سرپنچ و سیکریٹری، خلاف ورزی ہونے پر سخت ترین کارروائی کی جائے گی، ضلع کلکٹر نارائن ریڈی۔ میئر نیتو کرن کی زیر نگرانی میں ناگرام کے بیڑی ورکرز کالونی میں منعقدہ بونال تہوار جوش و خروش کے ساتھ انعقاد عمل میں لایا گیا۔ جمعیت علماء ریاستی صدر حافظ پیر شبیر احمد صاحب کا دورہ نظام آباد ضلع میں اجلاس منعقد کرتے ہوئے مختلف امور پر اراکین نے جمعیت سے کیا تبادلہ خیال۔ وہ ہجومی تشدد کا شکار فرد سے ملاقات کرتے ہوئے حکومت سے انصاف کا کیا مطالبہ۔ مستقبل میں کورونا ویکسین لینے والوں کو ہی ہوٹلز و مالز میں داخلے کی اجازت رہے گی، ڈائریکٹر و میڈیکل اینڈ ہیلتھ کا صحافتی بیان۔ اب بڑھتے خبروں کی تفصیل کی جانب۔ نظام آباد کلکٹر نارائن ریڈی نے کلکٹریٹ میں ذمہ دار عہدیداران سے ہریت حرم پر مبنی کاموں کے تعلق سے اجلاس کا انعقاد عمل میں لایا۔ نظام آباد کلکٹر نارائن ریڈی نے آج کلکٹریٹ میں ذمہ دار عہدیداران سے ہریت حرم کے متعلق اجلاس منعقد کرتے ہوئے کہا کہ ضلع میں واقع ہر روڈ پر اگست 13 تاریخ تک ایونیو پلانٹیشن پر مبنی کاموں کو فی الفور مکمل کرنے کے لیے عہدیداران کو ہدایت جاری کی اور بتایا کہ NREGS میں موجود ہر موقع کو قابل استعمال میں لاتے ہوئے کوئی بھی روڈ پودوں کے بغیر خالی نظر نہ آنے اور ہر 500 آبادی پر مشتمل گرام پنچایت پر پنچایت سیکریٹری کو مقرر کرنے کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ جی پی کے ہاتھے میں روڈ پر پودے لگانے کے لیے عہدیداران کی اجتماعی ذمہ داری لینے کے لیے کہتے ہوئے اگست 13 تاریخ تک ایونیو پلانٹیشن پر مبنی کاموں کو مکمل کرتے ہوئے 3 میٹر کی فاصلے پر پودے لگانے کے لیے AEO کو مانیٹر کرنے کے لیے احکامات جاری کیے۔ بانسواڑہ میں پیش آئے موب لنچنگ واقعے پر آل انڈیا جمعیت القریش ایکشن کمیٹی اور تلنگانہ جمعیت القریش کی مشترکہ قیادت میں ایک وفد ہوم منسٹر محمود علی سے ملاقات کی۔ گزشتہ چند روز قبل پیش آئے موب لنچنگ واقعے پر ایڈوکیٹ فہیم قریشی، آل انڈیا جمعیت القریش ایکشن کمیٹی اور محمد معیز بابو چودھری پریزیڈنٹ تلنگانہ جمعیت القریش کی مشترکہ قیادت میں ایک وفد ہوم منسٹر جناب محمود علی صاحب سے ملاقات کرتے ہوئے موب لنچنگ والے واقعے کی میجسٹریٹ کے ذریعے تحقیقات کروانے پر ایک میمورنڈم پیش کیا گیا۔ اس کے علاوہ نظام آباد سے تعلق رکھنے والے آل انڈیا جمعیت القریش ایکشن کمیٹی ضلع صدر رفیق قریشی نے MR ہاسپٹل پہنچ کر عبدالعزیز قریشی کی عیادت کی اور حالات کا جائزہ لیا۔ جمعیت علماء نظام آباد کے ایک وفد نے MR ہاسپٹل میں زیر علاج عبدالعزیز قریشی کی عیادت و مقتول رجب قریشی اور شدید زخمی عبدالعزیز قریشی کو انصاف اور قاتلوں کو کیفر کردار تک پہنچانے کا کیا مطالبہ۔ جمعیت علماء نظام آباد کی وفد نے آج بروز اتوار ریاستی جنرل سیکریٹری تلنگانہ و آندھرا حافظ پیر خالق احمد صابر صاحب، ضلع جمعیت علماء صدر مولانا سمیع اللہ، جنرل سیکریٹری مولانا عبدالقیوم شاکر قاسمی و صدر عیدگاہ کمیٹی قدیم و جدید افضل خان نے MR ہاسپٹل میں زیر علاج شدید زخمی عبدالعزیز قریشی کی عیادت کی۔ انہوں نے اور بتایا کہ رجب قریشی کے قاتلوں کو فوری گرفتاری عمل میں لاتے ہوئے انہیں کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا۔ فرقہ پرست عناصر گائے کے نام پر مسلمانوں کا قتل کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ رجب قریشی اور عبدالعزیز قریشی گائے کو منتقل کرنے کے دوران بانسواڑہ کے ایک موضع میں فرقہ پرستوں نے ان پر حملہ کر دیا اور رجب قریشی کا قتل کر ڈالا۔ شدید زخمی عبدالعزیز قریشی کو شریک دواخانے کیے جانے پر وہ 2 دن تک
کوما کی حالت میں زیر علاج رہے، اب ان کی حالت میں سدھار آ رہا ہے۔ زخمی عبدالعزیز قریشی نے اپنے بیان میں انکشاف کیا کہ ان پر قاتلانہ حملہ کیا گیا، جس پر ضلع جمعیت کے وفد نے اس حملے کی پرزور مذمت کرتے ہوئے ان کا ساتھ دینے اور ایسے شرمناک واقعات مستقبل میں رونما نہ ہونے کے لیے کڑی قانونی کارروائی کرتے ہوئے رجب قریشی کے قاتلوں اور عبدالعزیز کے خاندان کو انصاف دلانے کا وعدہ کیا۔ اس موقع پر ان کی جانب سے عبدالعزیز قریشی کو پھل فروٹ کے علاوہ مالی امداد فراہم کی گئی۔ اس موقع پر بانسواڑہ جمعیت کے ذمہ دار و دیگر موجود تھے۔ آتے بات کرنے جانے کے 100 لوگ رہتے، لڑائی 100 لوگ لڑ لیتے، مگر ہمارے کو روڈ پہ کی لڑائی نہیں لڑنے کا ہے، کچھ مقابلہ نہیں کرنا ہے۔ میرا یہ بولنا ہے قانونی لڑائی لڑیں گے، مطلب جو کام ہوا، جو حملہ آپ کے اوپر ہوا نا، حملہ جب آپ کے اوپر ہوا ہے تو وہ ان لوگوں کو تو جواب ملنا نا، جواب سے مطلب ہم ہاتھ سے نہیں ماریں گے، قانون کے حساب سے جواب دیں گے۔ ان کے اوپر کیس بک کر کے باہر کوئی جھگڑا پکارا یہ سب ہمارے کو نہیں کرنا ہے، اور ہمارا یہ کام بھی نہیں ہے۔ اسی لیے جمعیت علماء کی طرف سے ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ آپ کے طرف سے بھائی کی لڑائی ہم لوگ لڑتے 5 پیسے کی ضرورت نہیں ہے، اور وہ بچوں کو حق دلائیں گے اور ان کی وائف کو حق دلائیں گے۔ سمجھ نہیں بات، 5 بچے ان کے اسکول کا فلاں سب چیزوں کا گورنمنٹ سے، مطلب گورنمنٹ سے وہ تو ہم نمائندگی کر کے نہیں کریں گے، کورٹ سے وہ کام کرائیں گے۔ ضروری اس واسطے ہے کہ آج تمہارے بھائی کے اوپر تمہارے اوپر ہوا حملہ، کل کوئی اور چیز کے اوپر تمہاری دشمنی پکڑ کے اگر کرے تو جب تک ہم جواب نہیں دیے، جواب مطلب ہاتھ سے نہیں دینے کا ہے، قلم سے دینے کا ہے خالی، تو یہ لڑائی ہم لوگوں کو ہم لڑیں گے۔ ہم یہ طے کریں، آپ ساتھ دیجئے، برابر لڑائی۔ ساتھ سے مراد پیسے نہیں دینا ہے، آپ کو کچھ بھی نہیں دینا ہے، سب ہم کر لیتے، وکیل کو ہم کر لیتے، سب کر لیتے، انشاءاللہ انصاف پورا، اور آپ کے تحفظ کا، یعنی آپ کو کوئی مصیبت نہیں آنا، پریشانی نہیں آنا بول کر، پہلے تو اللہ ہے، اس کے بعد میں ہم لوگ جو ہو سکتا کوشش کریں گے۔ وہ جمعیت علماء ریاست تلنگانہ و آندھرا کے زیر اہتمام ایک مشاورتی اجلاس دفتر جمعیت علماء بودھن روڈ پر عمل میں آیا، جس میں صدر جمعیت علماء تلنگانہ و آندھرا کے علاوہ کئی علماء و مفتی اکرام کی شرکت اور تبادلہ خیال۔ آج جمعیت علماء ریاست تلنگانہ و آندھرا کے زیر اہتمام ایک مشاورتی اجلاس دفتر جمعیت علماء بودھن روڈ پر حضرت مولانا الحاج حافظ پیر شبیر احمد صاحب صدر جمعیت علماء تلنگانہ و آندھرا کی زیر صدارت، مولانا لائق احمد صاحب قاسمی سرپرست جمعیت علماء ضلع نظام آباد کی زیر سرپرستی، حافظ پیر خلیق احمد صابر صاحب جنرل سیکرٹری جمعیت علماء تلنگانہ و آندھرا مہمان خصوصی عمل میں آیا۔ اس موقع پر معزز مہمانان وہ 4 اضلاع سے تعلق رکھنے والے علماء اکرام و مفتی اکرام نے شرکت کی۔ اس مشاورتی اجلاس میں قوم و ملت سے متعلق کئی امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ مسلمان و نوجوانوں کی تربیت، اسلام کے طور طریقے، جمعیت علماء کی کارکردگی کے علاوہ منڈل، ضلع، ریاستی طور پر جمعیت علماء کو مستحکم بنانے پر زور دیا گیا۔ اس مشاورتی اجلاس میں مولانا الحاج ولی اللہ قاسمی مرحوم کے حق میں دعا کی گئی۔ اس موقع پر تمام ہی مہمانان کی شال پوشی و گل پوشی کی گئی۔ اس موقع پر TRS سینئر کارپوریٹر محمد عبد القدوس، MIM سینئر کارپوریٹر رفعت محمد خان نے بھی، عیدگاہ کمیٹی قدیم و جدید افضل خان، یاحییٰ ظفر، علماء اکرام کو شال پوشی انجام دی۔ باتزا مولانا سمیع اللہ صدر جمعیت علماء نظام آباد و جنرل سیکرٹری مولانا عبد القیوم شاکر قاسمی نے تمام ہی مہمانان کا شکریہ ادا کیا۔ شاید پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہوگا تو ہمارا کام ہے لکھ کے دیتے، اب وہ اوپر سے آیا کلیکٹر کے پاس میں، کلیکٹر ریفر کیا MRO کو، MRO ریفر کیا نیچے، اور MRO جا کر جو ہے وہاں پر معلومات تفصیل کرنے کے لیے گیا تو سرپنچ سے معلومات کرے گا، جا کے جب سرپنچ سے معلوم کرے گا تو آپ 10 ہیں وہ 20 ہیں، تو رپورٹ کسی تاریخ میں آئے گی، 20 کی تاریخ میں آئے گی۔ اب پھر وہاں سے وہ رپورٹ لکھ کے کلیکٹر کو روانہ کرے گا تو کلیکٹر لکھ دے گا کہ سر یہ فیور کی رپورٹ نہیں ہے، یہ ان کے فیور کی رپورٹ ہے، تو میرا لیٹر دینا ضائع، آپ کا بھاگنا ضائع، کام نہیں ہوا۔ کام کیسے ہوگا؟ ایسے کام ہوگا کہ جس جگہ پر یہ کام آپ کر رہے ہیں وہاں پر قیادت یہ لوگوں کی خوشنودی نہیں چاہتی ہے بلکہ لوگوں کی بہبودی چاہتی ہے۔ آپ دیکھیے کہ اس معیار پر کون سی قیادت اتر رہی ہے؟ جمعیت علماء اتر رہی ہے۔ ہمارے جنرل سیکرٹری صاحب نے کچھ چیزوں کی طرف اشارہ کیا تھا کہ یہ مثال کے طور پر
हमारी इस तंजीम के मुनज़्ज़म और मुस्तहकम रहने के लिए जरूरी है कि मंडल सतह से लेकर मरकज तक बाहम हर एक का दूसरे से रब्त हो। मंडल का जिले से, देहात का मंडल से, मंडल का जिले से, जिले का रियासत से, रियासत का मरकज से बाहम एक दूसरे से मजबूत रहें और एक दूसरे पर पुरएतमाद रहें। साबिका रियासती वजीर सुदर्शन रेड्डी के वालिदा का साना इर्तहाल पर कांग्रेस कायदी ने गहरे अफसोस का इजहार किया। साबिका रियासती वजीर सुदर्शन रेड्डी की वालिदा श्रीमती रुकमव्वा का आज दोपहर 1 बजे इंतकाल हो गया। कल सुबह ठीक 10 बजे हैदराबाद के जुबली हिल्स में आखिरी रस्मात अदा करने का अफराद खानदान ने इंकशाफ किया। इस मौके पर कांग्रेस पार्टी से वाबस्ता कायदीन ने गहरे अफसोस का इजहार किया। रोटरी क्लब ऑफ आर्मूर की ज़ेरे निगरानी में फ्रेंडशिप डे का शानदार पैमाने पर इनेकाद अमल में लाया गया। आर्मूर के मार गार्डन में रोटरी क्लब ऑफ आर्मूर की ज़ेरे निगरानी में फ्रेंडशिप डे का शानदार पैमाने पर इनेकाद अमल में लाया गया। इस प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी के तौर पर डिस्ट्रिक्ट गवर्नर हनुमंत रेड्डी ने शिरकत करके आज फ्रेंडशिप डे के पेश नजर एक दूसरे को फ्रेंडशिप बैंड बांधकर खुशी का इजहार करते हुए कहा कि एक सच्चा दोस्त जिंदगी की मुश्किल तरीन हालात पर भी साथ ना छोड़ते हुए मदद फराहम करने वाले को बेहतरीन दोस्त होने का इंकशाफ किया। इस प्रोग्राम में रोटरी क्लब सदस्य सुरेश कुमार, सेक्रेटरी राम प्रसाद, पुष्पाकर राव, मुरली मोहन, राजेंद्र, गंगा रेड्डी, लिम्बाद्री गौड़, गोपी कृष्णा लिम्बाद्री, तुलसी, गंगा श्रीनिवास, रमेश व दीगर ने शिरकत की। मेयर नीतू किरण की ज़ेरे निगरानी में नगराम के बीड़ी वर्कर्स कॉलोनी में बोनाल त्योहार का जोश खरोश के साथ इनेकाद। जिले निजामाबाद के नगराम में वाक़े बीड़ी वर्कर्स कॉलोनी में मियां नीतू किरण की ज़ेरे निगरानी में मुकामी अवाम ने बोनाल त्यौहार को जोश खरोश के साथ मनाया गया। इस मौके पर मुनक़िदा बोनाल त्यौहार में ख़वातीन ने बोनाल को सर पे उठाए जुलूस में शिरकत की। बातज़ा मियां नीतू किरण ने कहा कि हर साल बोनाल त्यौहार को शानदार पैमाने पर इनेकाद अमल में लाने का इजहार करते हुए कहा कि इस बोनाल त्यौहार को खेत खलियान की बेहतरीन काश्त व अवाम की खुशहाल जिंदगी गुजारने के लिए मुनक़िद करने का इंकशाफ किया। గత ఆషాఢ మొదలైనప్పటి నుంచి కూడా మొత్తం మన తెలంగాణ రాష్ట్రం అంతటా రాష్ట్ర పండుగ అయినటువంటి ఈ బోనాల పండుగ పెద్ద ఎత్తున మనం జరుపుకుంటాం। అందులో మన నిజామాబాద్ నగరంలో ప్రతి వారం కూడా ఎవరికి వారికి తగిన విధంగా ప్రతి వార్డులలో కూడా ప్రతి కాలనీస్లలో కూడా ఈ ఊర పండుగ జరుపుకుంటున్నారు। जिले महबूबाबाद एमपी मालवत कविता के हाथों एलओसी के तहत हॉस्पिटल अखराजात के लिए 3 करोड़ रुपए की इमदाद फराहम की गई। जिले महबूबाबाद डोनकल मंडल चिलुकुड़ा देहात से ताल्लुक रखने वाले मंडा नागाश्री को हैदराबाद के निम्स हॉस्पिटल में ब्रेन सर्जरी से मुतालिक अखराजात की अदायगी के लिए एलओसी के तहत 3 करोड़ रुपए को जिले महबूबाबाद एमपी मलावत के हाथों से डोनकल टीआरएस पार्टी यूथ सदर के सतीश कुमार ने हवाले किए। इस मौके पर यूथ सदर सतीश कुमार ने खिताब करते हुए कहा कि तेलंगाना हुकूमत ने कोरोना वायरस के मुश्किल तरीन हालात के बावजूद भी सतह गुर्बत से ताल्लुक रखने वाले गरीब अवाम की सेहत पर मबनी मसाइल के हल के लिए रियासती हुकूमत ने एलओसी के तहत मदद करते हुए गरीब अवाम की कीमती जिंदगियों का तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का इंकशाफ किया। इस मौके पर महबूबाबाद जिले एमपी मलावत कविता व डोनकल रुकन असम्बली रेडिया नायक ने सीएम केसीआर को इजहार तशक्कुर पेश किया। మరి వైద్య సౌకర్యాలు లేక ఇబ్బందులు పడుతున్నటువంటి ఈ సమయంలో మరి ఈ కోవిడ్ ఒక పక్కన కోవిడ్ కూడా చాలామందిని బాధిస్తున్నటువంటి ఈ సమయంలో తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మరి వీరందరికీ కూడా మేమున్నామని చెప్పని ఎల్ఓసీల రూపకంగా మరియు సీఎం రిలీఫ్ ఫండ్ రూపకంగా మరి ప్రతి ఒక్కరికి కూడా చేయూతనిస్తూ बालकुंडा मंडल के मुकाम पर कॉर्पोरेशन मेंबर सैयद फयाज अली ने एमपीडीओ के हमरा डेंगू से मुतासरा कॉलोनी का जायजा लेकर मुकामी अवाम को साफ सफाई पर मबनी कामों पर ज्यादा तवज्जो देने की अपील की। बालकुंडा मंडल के मुकाम पर कॉर्पोरेशन मेंबर सैयद फयाज अली ने एमपीडीओ संतोष कुमार के हमरा हाल ही में डेंगू से मुतासर अफराद की कॉलोनी का दौरा करते हुए मुकामी अवाम को साफ सफाई पर मबनी कामों पर ज्यादा से ज्यादा तवज्जो देते हुए अपने इर्द गिर्द के माहौल को साफ सुथरा बनाए रखने के साथ बारिश के जमा पानी जखीरे को फौरी तौर पर निकासी अमल में लाकर मौसमी अमराज का खात्मा करने के मुतालिक मालिक मकान को शौर बेदारी अमल में लाई गई। इस मौके पर इनके साथ पंचायत सेक्रेटरी गंगाधर व दीगर ने शिरकत की।
हाई कोर्ट में 9 अगस्त से मुकदमात की फिजिकल समाअत 1 माह तक, तजुबाती असास पर इक़दामात, वर्चुअल समाअत का सिलसिला भी जारी रहेगा। तेलंगाना हाई कोर्ट ने तमाम मुकदमात की ऑनलाइन वर्चुअल समाअत के मौजूदा तरीक़ेकार को 8 अगस्त तक बरकरार रखने का फैसला किया है। इसके बाद डिवीजन और सिंगल बेंच पर तजुबाती असास पर 9 अगस्त ta 9 सितंबर फिजिकल और वर्चुअल दोनों तरीकों से मुकदमात की समाअत की जाएगी। ऐसे में तमाम मुतालिका गोशों के लिए हिदायत जारी कर दी गई है। फिजिकल समाअत के दौरान अदालत आने वालों को कोविड-19 के रहनुमाना खतूत पर अमल करना होगा, इन्हें मास्क पहनना होगा, सैनिटाइजर इस्तेमाल करना होगा और समाजी फासले का ख्याल रखना होगा। अदालत के हाथे में सिर्फ इन वकला और अफराद को दाखिले की इजाजत दी जाएगी जिनके केस फहरिस्त में शामिल हो। इन्हें अपने मोबाइल या किसी और तरीके से मुकदमे की तारीख बताई होगी। जो लोग टीका ले चुके हैं इन्हें अदालत के हाथे में दाखिले की इजाजत दी जाएगी, ताहम इसके लिए टीका लेने का सर्टिफिकेट पेश करना होगा। बसूरत दीगर अदालत की जानिब से मुकदमात की फिजिकल समाअत के तरीक़ेकार से दस्तबरदारी इख्तियार कर ली जाएगी। जिनकी टीका अंदाजी मेडिकल वजूहात की बिना पर की गई है, इन्हें कुछ नरमी दी जाएगी। जैसा कि मरकजी और रियासती हुकूमतों की हिदायत है, मुकदमात की वर्चुअल समाअत के दौरान भी वकला और फरीकैन को इस बात की इजाजत रहेगी कि वो क़ब्ल अज़ वक्त रजिस्ट्री से राब्ता करते हुए मुकदमात की वर्चुअल समाअत करवा सकते हैं। फिजिकल और वर्चुअल समाअत के दौरान दूसरी वजूहात इन पर भी हाई कोर्ट में अमल करना होगा। इन हिदायत पर आइंदा अहकाम तक अमलावरी होगी। हाई कोर्ट ने आदिलाबाद और निजामाबाद अजला में 8 अगस्त तक मुकदमात की वर्चुअल समाअत ही जारी रखने का फैसला किया है। 9 अगस्त से 9 सितंबर तक अदालतों में पहले मरहले के मुतबदला तरीके के मुताबिक काम अंजाम दिया जाएगा। अलावाजी यही तरीक़ेकार सिटी सिविल कोर्ट, मेट्रोपॉलिटन सेशंस कोर्ट, CBI कोर्ट्स वगैरह में भी इख्तियार किया जाएगा। फिजिकल समाअत में कोरोना पाबंदियों की मुकम्मल तहदीदात की वाज़ेह हिदायत दे दी गई है। नए राशन कार्ड्स पर 4 माह तक मुफ्त चावल, हुकूमत का फैसला, 92.40 करोड़ का बोझ, अगस्त से अमलावरी। तेलंगाना हुकूमत ने एक अहम फैसले में माह अगस्त से आइंदा 4 माह तक नए राशन कार्ड दहिंदों को माहाना 10 किलो चावल मुफ्त तकसीम करने का ऐलान किया है। रियासती वजीर सिविल सप्लाई गंगुला कमलाकर ने कहा कि चीफ मिनिस्टर KCR ने गरीब अवाम को फायदा पहुंचाने के सिलसिले को जारी रखते हुए ये फैसला किया है। हुकूमत ने 3,09,083 नए राशन कार्ड जारी किए गए। इनमें अगस्त ta नवंबर तक नए राशन कार्ड दहिंदों को माहाना 10 किलो चावल मुफ्त सरबराह किया जाएगा। इस फैसले से हुकूमत पर माहाना 23.10 करोड़ और 4 माह में 92.40 करोड़ रुपए का इजाफा बोझ आयद होगा। इस पर रियासत में 3 अगस्त से अमलावरी होगी। वजीर सिविल सप्लाईज ने कहा कि नए राशन कार्ड्स की जुराई तवील अरसे से ज़ेर-ए-इल्तिवा थी। काबीना के इजलास में गौर के बाद पहले मौसूला दरख्वास्तों की एक्सवी कर दी गई है। कोरोना वबा अभी खत्म नहीं हुई, गफलत बरतने पर केरला जैसी सूरत हाल पैदा होगी। तेलंगाना के 9 अजला में केसेस बढ़ रहे हैं। मुस्तकबिल में होटल्स और मॉल्स में दाखिले के लिए वैक्सीन लाजमी होगा। डायरेक्टर हेल्थ G श्रीनिवास राव ने कहा कि कोरोना की वबा अभी खत्म नहीं हुई। अगर अवाम ने एहतियात नहीं किया तो तेलंगाना में केरला जैसी सूरत हाल पैदा हो सकती है। आज मीडिया से बात करते हुए इन्होंने कहा कि तेलंगाना में कोरोना केसेस बढ़ रहे हैं। खम्मम, नलगुंडा, करीमनगर में ज्यादा केसेस दर्ज हो रहे हैं। तेलंगाना के 9 अजला में कोरोना केसों में इजाफा हो रहा है। कोरोना से मुतासिर होने के बावजूद चंद लोग आइसोलेशन में रहने के बजाय बाहर निकल रहे हैं, जो खतरनाक है, जिससे कोरोना की वबा मज़ीद तेजी से फैलने का इम्कान है। डायरेक्टर हेल्थ ने कोरोना मुतासिरीन को घरों में रहने पर जोर दिया, हॉस्पिटल में शरीक होने का मशवरा दिया। इन्होंने अवाम को कोरोना वैक्सीन लेने पर जोर देते हुए कहा कि मुस्तकबिल में सफर के लिए वैक्सीन लाजमी हो जाएगा। साथ में होटल्स व मॉल्स में दाखिले के लिए वैक्सीन लाजमी हो जाएगा। श्रीनिवास राव ने कहा कि डेल्टा वेरिएंट हिंदुस्तान के बमशमूल दुनिया के 135 ममालिक में शिद्दत इख्तियार कर रहा है। कई ममालिक में तेजी से कोरोना केसेस दर्ज हो रहे हैं। ये वेरिएंट इंसानी जिस्म में ज्यादा दिनों तक रह रहा है और इन्फेक्शन तेजी से फैल रहा है। तेलंगाना में अभी तक 2 डेल्टा प्लस केसेस दर्ज हुए हैं। माह में इसकी हैदराबाद में शनाख्त की गई है और जो लोग इससे मुतासिर थे वो सेहतियाब हुए हैं। इनके राब्ते में रहने वालों की निशानदही करके टेस्ट करने पर
नतीजा नेगेटिव बरामद हुआ था। तेलंगाना में 2.2 करोड़ अवाम को कोरोना वैक्सीन लेने के अहल है। इनमें 1.12 करोड़ अवाम को अभी तक कोरोना का सिंगल डोज दिया गया। साथ ही 33.79 लाख अफराद को कोरोना का दूसरा डोज दे दिया गया है। पहला डोज हासिल करने वालों में 30% अफराद को दूसरा डोज भी दे दिया गया। इस माह अभी तक 30.4 लाख डोज रियासत को आए हैं। मुख्तस करदा से ज्यादा 9.5 लाख डोज रियासत को हासिल हुए हैं। रियासत में 22.32 लाख अफराद को दूसरा डोज देना है, जिनमें 12 लाख लोगों को दूसरा डोज दे दिया गया है। कोवैक्सीन के 3 लाख से ज्यादा दूसरा डोज देना है। आइंदा 1-2 हफ्ते में दूसरा डोज देने वालों को तरजीह दी जाएगी। डायरेक्टर हेल्थ ने कहा कि रियासत में कोरोना की तीसरी लहर से निपटने बड़े पैमाने पर तैयारियां की गई हैं। ऑक्सीजन, तिब्बी अमला पूरी तरह दस्तयाब है। इन्हें मुकम्मल तरबियत फराहम की गई है। हुकूमत की जानिब से सरकारी हॉस्पिटल में ऑक्सीजन पर मुश्तमिल 26,000 बेड से तैयार है। बच्चों के लिए अजला हेडक्वार्टर्स के तमाम सरकारी हॉस्पिटल्स में मुकम्मल बुनियादी सहूलतें फराहम की गई हैं। 100 बेड्स पर मुश्तमिल तमाम खानगी हॉस्पिटल्स को आइंदा माह अगस्त के आखिर तक ऑक्सीजन प्लांट से दस्तयाब रखने की हिदायत दी गई है। उम्रा ज़ायरीन के लिए अमान की परवाजें बहाल। अमान एयरलाइन ने 11 अगस्त 2021 से जिद्दा के लिए उम्रा परवाजें बहाल करने का ऐलान किया है। UAE मीडिया के मुताबिक अमानी एयरलाइन ने ट्विटर के अपने अकाउंट पर बताया कि उम्रे के लिए 11 अगस्त से जिद्दा के लिए परवाजें बहाल कर दी जाएंगी। वैक्सीन सर्टिफिकेट पेश करने पर उम्रा ज़ायर होटल खरतीनिया की पाबंदी से मुस्तस्ना होंगे। सर्टिफिकेट में ये साबित करना होगा कि कोविड वैक्सीन की दूसरी खुराक सफर से 14 रोज कबल ली जा चुकी है। याद रहे कि दाखिली आज़मीन के लिए उम्रा मौसम का आगाज गुज़िश्ता इतवार से हो चुका है। इस साल हज मौसम की कामयाबी के बाद उम्रा का नया मौसम शुरू किया गया है। तमाम हज्जाज कोरोना वायरस से महफूज रहेंगे। सऊदी वजारत सियाहत ने यह भी ऐलान किया है कि 1 अगस्त से वैक्सीन लगवाने वाले सियाहों के लिए सऊदी अरब के दरवाजे खोल दिए जाएंगे। 100% पीने के पानी के कनेक्शंस के साथ तेलंगाना मुल्क में वाहिद बड़ी रियासत। रियासत तेलंगाना मुल्क में वो वाहिद बड़ी रियासत है जहां हर घर में नल का पानी फराहम किया जा रहा है। इसी तरह ये रियासत बिलखुसूस दही इलाकों में 100% नल के पानी के कनेक्शन फराहम करने वाली रियासत है। दूसरी छोटी रियासतों और मरकजी ज़ेर इंतजाम इलाकों में जहां ये कारनामा हुआ है, इनमें गोवा, पट्टुचेरी और जज़ायर, इंडोमान और निकोबार शामिल है, जहाँ जल जीवन मिशन के तहत काम हुआ है। मरकजी ममलिकती वजीर जल शक्ति प्रहलाद सिंह पटेल ने जुमेरात को लोकसभा में ये बात बताई। रियासत तेलंगाना में अगस्त 2016 में हर घर को पाइप के जरिए पीने के पानी सरबराह करने के मकसद से मिशन भगीरथा प्रोग्राम शुरू किया गया था। रियासती हुकूमत की इस पहल से तहरीक पाकर मरकज की नरेंद्र मोदी हुकूमत ने अगस्त 2019 में जल जीवन मिशन का आगाज किया। अब तक रियासती हुकूमत ने 45,000 करोड़ रुपए के मसारिफ से दही इलाकों के 54 लाख से ज्यादा घरों को नल के पानी के कनेक्शन फराहम किए हैं और शहरी इलाकों में मजीद 20 लाख घरों को नल के जरिए पीने का पानी फराहम किया जा रहा है। दूसरी रियासतें वहां की आबादी के लिए पीने के पानी के कनेक्शन फराहम करने के लिए बड़ी हद तक मरकजी हुकूमत के फंड पर इन्हिसार करती है, जबकि मिशन भगीरथा के लिए दरकार रकम का बड़ा हिस्सा रियासत तेलंगाना के खजाने से फराहम किया गया। अब तक मरकज ने 2021-22 बजट साल तक सिर्फ 2,324.42 करोड़ रुपए ही मंजूर किए हैं, जो जुमला मसारिफ का तकरीबन 6% है। नलगोंडा के रुकने पार्लियामेंट एन उत्तम कुमार रेड्डी की जानिब से किए गए एक सवाल का जवाब देते हुए मिस्टर पटेल ने कहा कि मरकजी हुकूमत ने रियासतों के इश्तिराक से अगस्त 2019 में जल जीवन मिशन का आगाज किया ताकि 3.6 लाख करोड़ रुपए के तखमीने मसारिफ से 2024 तक दही इलाकों में हर घर को नल के पानी का कनेक्शन फराहम किया जाए। मरकजी हुकूमत रियासती हुकूमतों के साथ ये कोशिश कर रही है कि मार्च 2022 तक तकरीबन 10.24 करोड़ दही घरों को पाइप के जरिए पीने के पानी की सरबराही की जाए। मोरतार गांव के दही तरक्की कमेटी सदर ने कमेटी मेंबरान के हमरा जिले का सबसे बड़े तालाब से तोमू के तहत खेत खलियान को किनाल के जरिए पानी की जुराई अमल में लाने का किया इंकशाफ।
मोरताड़ गांव के दही तरक्की कमेटी सदर सिन्नापल्ली गंगा मोहन दास ने दीगर कमेटी मेंबरान के हमरा मोरताड़ देहात में वाक़ जिले का सबसे बड़ा मुसल्लमा तालाब से तुम्मू के तहत खेत खलियान को किनाल के जरिए पानी की जुड़ाई अमल में लाई गई। इस मौके पर दीगर दही तरक्की कमेटी सदर सिन्नापल्ली गंगा मोहन व दीगर कमेटी मेंबरान ने बात करते हुए कहा कि रियासती वजीर इमारत शौरा विमला प्रशांत रेड्डी की कामयाब तरीन काविशों के सबब तालाब को काकतिया स्कीम के तहत 3 करोड़ रुपए के फंड्स की मंजूरी अमल में लाने के अलावा 3 से 4 किलोमीटर दूर दराज खेतों को पानी की फराहमी अमल में लाने के लिए सीसी किनाल की तामीर अमल में लाने का इंकशाफ। इस मौके पर मुकामी अवाम व किसानों ने रियासती वजीर इमारत और शौरा विमला प्रशांत रेड्डी का शुक्रिया अदा किया। सुनकेट देहात को साफ सुथरा व सरसब्ज और शादाब बनाने का मुकामी सरपंच ने किया इंकशाफ। जिले निजामाबाद बालकुंड अलखसमली मोरताड़ मंडल सुनकेट देहात में टीआरएस हुकूमत की जानिब से रूबे अमल में लाए जाने वाले पले प्रगति हरिता हरम पर मबनी तरक्याती कामों को रियासती वजीर प्रशांत रेड्डी व जिले कलेक्टर के अहकामात के मुताबिक सुनकेट देहात के माहौल को हरा भरा करने के अलावा साफ सफाई से मुंसलिक कामों को तेजी के साथ पाए तक मिल तक पहुँचाने का मुकामी सरपंच श्रीनिवास व नायब सरपंच पृथ्वी एमपीटीसी प्रसाद ने इंकशाफ किया। इस मौके पर दीगर अवामी नुमाइंदों ने इजहार ख्याल करते हुए कहा कि सुनकेट देहात के रोड पर रोजगार तमानियत स्कीम से मुंसलिक मजदूरों के जरिए रोड के तरफ एक नाव गड्ढे खोदकर पौधे लगाने के साथ इन पौधों की बेहतर निगहदाश्त के लिए ट्री गार्ड लगाकर इन पौधों की हिफाजत करने का इंकशाफ किया। इस मौके पर टीआरएस पार्टी से वाबस्ता अवामी नुमाइंदे व दीगर ने शिरकत की। आज भीमगल मंडल टीआरएस पार्टी कायदीन के एक वफद ने गंगापुल देहात का दौरा करते हुए चेक डैम का मुआयना किया। भीमगल मंडल टीआरएस पार्टी कायदीन का एक वफद जिसमें मोहम्मद अब्दुल मोइज जिले परिषद कॉप्शन मेंबर चोटपली रवि ZPTC और दोमकुंटी नरसैया सदर जिले टीआरएस पार्टी मौजूद थे। गंगापुल देहात का दौरा करते हुए चेक डैम का मुआयना किया। बातज़ा अखबारी नुमाइंदों से खिताब किया। इस मौके पर मोहम्मद अब्दुल मोइज जिले परिषद कॉप्शन मेंबर ने साबिका गवर्नमेंट वेब कांग्रेस इरावती अनिल की जनाब विमला प्रशांत रेड्डी वजीर पर लगाए गए इल्जामात की शदीद मजम्मत की और कहा कि ये झूठ पर मबनी है और बेबुनियाद है। इन्होंने कहा कि गंगापुल देहात के किसानों की नुमाइंदगी पर ही 3 साल कबल जनाब विमला प्रशांत रेड्डी साहब ने 3.53 करोड़ की लागत से ये चेक डैम तामीर करवाया था। बातज़ा यहाँ के किसानों के लिए किसानों के इसरार पर मजीद 5 लाख रुपए के फंड से मंजूर करवाते हुए और 2 फीट की दीवार तामीर की गई थी। अब जबकि गुज़िश्ता तूफानी बारिश हर जगह कहरसानी है, कहर बरसा रहे। इस बारिश में ये 2 फुट की दीवार को नुकसान पहुंचा है, जबकि चेक डैम जो का तू मौजूद है। इरावती अनिल और कांग्रेस के कायदीन ने बेबुनियाद इल्जामात आयद करते हुए इख्तियार की लालच में सतही सियासत कर रहे हैं, जबकि विमला प्रशांत रेड्डी साहब गुज़िश्ता 7 बरसों से करोड़ों रुपयों के तरक्याती काम अंजाम देते हुए अवाम के दरमियान काम कर रहे हैं और कोरोना वायरस वबा में अवाम में रहते हुए खिदमात अंजाम दिए। इस वक्त इरावती अनिल कहाँ थे? इन्होंने इरावती अनिल को कहा और अपने अल्फाज वापस लेने का इजहार किया। MLA इरावती अनिल साहब का भीमगल मंडल गोंगापुल विलेज का दौरा हुआ। इस मौके पर चेक डैम का दौरा कर जो कंस्ट्रक्शन चेक डैम का जो आज से 3 साल पहले 3 करोड़ 53 लाख से जो चेक डैम कंप्लीट हुआ था, उसके ऊपर और एक बाद में 5 लाख रुपए का कंस्ट्रक्शन हुआ, जो किसानों के मांग पर 5 लाख का ऊपर एक 2 फीट का कंस्ट्रक्शन हुआ था, जो ज़्यादा बारिश की वजह से जो क्लाप्स होगा बह गया। ज़्यादा बारिश की वजह से पिछले 14 साल के अंदर जो बारिश नहीं हुई थी, इस साल ज़्यादा बारिश होने की वजह से वो टूट गया। तो उसके ऊपर उन्होंने कमेंट्स करा कि ये प्रशांत रेड्डी साहब जो सो मिनिस्टर साहब के उनके चाहने वाले जो हो सो या उनका हिस्सा है इसमें कंस्ट्रक्शन में, जो सही कंस्ट्रक्शन नहीं करे जिसकी वजह से ये टूट गया। तो मैं इरावती अनिल साहब से और कांग्रेस वालों से मुतालबा करता हूँ कि आपके जो इल्ज़ामात लगाए वो सरासर गलत है। इख्तिताम से खबर नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर।
हरितहरम के तहत लगाए गए पौधों की हिफाजत व निगहदाश्त की जिम्मेदारी ग्राम पंचायत सरपंच व सेक्रेटरी। खिलाफ वर्जी होने पर सख्त तरीन कार्रवाई की जाएगी। जिला कलेक्टर नारायण रेड्डी। मेयर नीतू किरण की जेर निगरानी में नगराम के बीड़ी वर्कर्स कॉलोनी में मुनक़िदा बोनाल त्यौहार जोशो खरोश के साथ इनेकात अमल में लाया गया। जमीयतुलमा रियासती सदर हाफिज पीर शब्बीर अहमद साहब का दौरा निजामाबाद जिले में इजलास मुनाकिद करते हुए मुख्तलिफ उमूर पर अराकीन ने जमीयत से किया तबादले ख्याल। वो हुजूमी तशद्दुद का शिकार फर्द से मुलाकात करते हुए हुकूमत से इंसाफ का किया मुतालबा। मुस्तकबिल में कोरोना वैक्सीन लेने वालों को ही होटल्स व मॉल्स में दाखिले की इजाजत रहेगी। डायरेक्टर व मेडिकल एंड हेल्थ का सहाफती बयान। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।